Okay, very good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to today's session. So I request good afternoon, Hema ji. Thank you for being here. बाकी सब भी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर दें ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन प्रेजेंट है आज कॉल के ऊपर एंड वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, सो अगर आप इससे कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं कल की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, कल का जो हमारा चैप्टर था वाज अबाउट मैजिकल टू डू लिस्ट. तो आप में से अगर किसी ने अपने किसी काम की लिस्ट बनाई, अपनी टू डू लिस्ट बनाई एंड आपको उस काम को करने में आसानी महसूस हुई या कुछ एनीथिंग यू वांट टू शेयर रिलेटेड टू दैट, you can unmute yourself, you can share, or if anything you want to ask, you can do that as well. Just a second, I'll just put the link on the group once again. Just pause for it. Okay, all right. So आज का जो हमारा चैप्टर है इस कॉल, आज हमारा डे 19 है इस मैजिकल जर्नी का, हमारी असाइनमेंट्स का. एंड आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मैजिक फुटस्टेप्स. वील स्टार्ट इन सम टाइम क्योंकि अभी देयर आर पीपल स्टिल जॉइनिंग इन. अच्छा, आई जस्ट वांट टू नो कि आप जब जो इस कॉल पे हैं, लाइक हु इनवाइटेड यू? कैन यू जस्ट शेयर ऑन द चैट सो दैट आई नो कि किस किस बैकग्राउंड से people have joined in. Can you just share who invited you on this session? Just अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं या फिर आप चैट पे भी लिख सकते हैं. So हेमा जी, आपको किन्होंने इनवाइट किया? आप अनम्यूट कर सकते हैं. बॉटम लेफ्ट पे अनम्यूट का बटन आएगा आपकी स्क्रीन पे. Good evening, Ma'am Annie. हाँ जी. Good evening, Ma'am Annie. I am Mrs. Nithi Mathur from Presidency School, and unfortunately, my camera is not working, and hence I am unable to keep the camera on. That's fine. Good. Thank you, Nithi ji. Thank you for being here and thank you for sharing. Thank you. Thank you. Yes. Baki sir, can you all also please share? Like, because right now it's a mix of participants from the presidency. Okay. So you are also from Garima. Wonderful. Thank you, Tanya ji, for being here. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. This is Geeta Pandey from Presidency School. And ma'am Garima has invited us in this. Okay. Nice to hear, nice to know. And आप में से सब मतलब since a lot of teachers have also joined in this session, in this workshop, आपको अगर अपने लिए अपनी life में if there's anything that you've experienced and you want to share, big or small, so you can unmute yourself and share. Like for me, I would like to share. Today only I got a very So today only I got into a very beautiful argument with my brother, and I remember when I was, if it was me before, the kind of the level of heat that existed, it would have taken probably days, maybe weeks of नहीं बात करना या उसी गुस्से में बैठे रहना. But I personally feel that because इस magic journey में है, I was able to get out of that negative zone या जिस वजह से वो negativity arise हुई थी. बातें करती है, झूठी बातें करती रहती है यानी मुंजाल. झूठी बातें फालतू की बातें करती रहती है. ठीक है आरव जी, आप बताओ कौन सी बातें सच्ची हैं. चलो let's talk about that. Come on, unmute yourself. चलो let's talk सच्ची बातें. आओ. अरे come ना, this is all your platform. Come talk about it. Nothing to talk. अरे this is yours. Unmute yourself. जो भी आपका नाम है, this is all yours. जैसी आपकी इच्छा, कभी दोबारा मन करे तो जरूर आना. We'd love to hear आपके लिए सच्ची बातें क्या है. हो सकता है हम भी आपसे कुछ नया सीखें, है ना? चलिए. So for me, that was a real breakthrough in the sense to be able to
अगर कोई नेगेटिविटी अपनी लाइफ में आई है, ऐसा नहीं है कि अब मेरी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आ रही है, आ रही है, बट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ दैट, गिवन द ड्यू प्रैक्टिस, उसमें बहुत फर्क आया है. Anybody else? Any question anybody has? Anything you want to share? Okay, so let's start with today's practice. Today is the day 19 and today's chapter is called Magic Footsteps. And thank you everyone for joining in, because 4 o'clock is like, middle of the day. It is really midday and everybody's doing different things. Some people are resting, some people lunch खा के वो बस अभी है ना फ्री हुए होते हैं, कुछ लोग अपनी ट्यूशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं. मगर यू बीइंग ऑन दिस कॉल रियली मीन्स अ लॉट, है ना, कि आपके अंदर अपने लिए अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ एनी रीजन, whether because of your ma'am or because of any reason you're on this call and you're open to this new learning, I think that speaks a lot about you. चलिए, कल हमने इंग्लिश में पढ़ा था, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे. Let's go. दिन, जादुई कदम. अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री थे, वे कहते हैं, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए. आज का जो हमारा चैप्टर है ना, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ से इंस्पायर्ड है. He was a scientist, he was a physicist, है ना, एंड उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, देखो ऐसा नहीं है कि उनके पहले साइंटिस्ट नहीं आए या उनके बाद साइंटिस्ट नहीं आए, ऐसा तो नहीं है ना, मगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया. देखो, he passed away in 1955. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पैदा होने से पहले ही he had gone, मगर उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया कि गुजरने के इतने सालों बाद भी लोग उनको उनके इतने रिमार्केबल वर्क के लिए आज भी याद करते हैं, है ना. मतलब आज की डेट में भी आप किसी छोटे से बच्चे से पूछोगे ना साइंटिस्ट, उसके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आएगा? आइंस्टाइन. यस, साइंटिस्ट मतलब एक आदमी जिसके ग्रे कलर के बाल है, ऐसे खड़े खड़े रहते हैं. यस, मतलब उन्होंने अपनी फील्ड में इस तरीके की, इस लेवल तक की हाइट्स को प्राप्त किया, तो कुछ तो रीजन रहा होगा. अगर वो सिर्फ एक प्लेन फिजिसिस्ट होते तो कितने फिजिसिस्ट आए और कितने फिजिसिस्ट गए? यस, नो, कितने नोबेल प्राइज विनर्स आए और कितने गए, कितने याद है कितने नहीं याद. यस, इन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया? What was his inherent quality because of which he has become such a milestone in his field, right? So today's chapter is about learning from him. आज के चैप्टर में हम इनसे सीखेंगे कि यार चलो, इन्होंने अपनी लाइफ में अपनाया, आज की डेट में मैं हो सकता है I am doing the job of a daughter, या I am doing the job of a mother, है ना, या फिर टीचर, या फिर मैनेजर, या स्टूडेंट, या जो राइटर बन रही हूँ, या मैं whatever it is that I'm doing. अगर मैं भी अपनी उस फील्ड में उस तरह की महानता करना चाहती हूँ, whatever it is, even if it is अचार बनाना, है ना, कुछ भी करना का, तो एक तो होता है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखो कि मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकती हूँ. दूसरा मेथड क्या होता है, कोई इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुका है, उससे सीख लो कि उन्होंने ऐसा क्या किया या क्या नहीं किया जिससे उन्हें सक्सेसफुली, उससे सीख लो, है ना. That is a much more efficient way of working, isn't it? So today's chapter is inspired from the story, from the practices that Albert Einstein used to do daily. And he simply said, यार हर दिन ना मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए.
देखो एक तो ऑप्शन है कि हम इस लाइन को पढ़े, भूल जाए, भाग जाए, है ना. दूसरा है really understand what is he saying. He is saying I have to remind myself. It doesn't happen naturally कि खुद ही हो जाता है, नहीं. उन्हें अपने आप को दिन में 100 बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई अभी इस मोमेंट पे भी जो मैं लाइफ जी रही हूँ ना, मेरे अंदर जो इंटरनली चल रहा है एंड बाहरी एक्सटर्नली जो चल रहा है. अंदरूनी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले बाहरी की बात करते हैं. बाहरी मीन्स थिंग्स आउटसाइड ऑफ मी, है ना. उन सब चीजों पे न जाने कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है, whether they are dead or whether they are alive. उनके श्रम पर निर्भर है, उनके एफर्ट्स की वजह से. जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ अभी, चेयर मैंने नहीं बनाई, है ना. पता नहीं कौन सा कारपेंटर, कौन सा लेदर वाला पर्सन, किस डिजाइनर ने इसकी शेप कॉन्सेप्चुअलाइज की होगी, इसके अंदर इतनी कुशनिंग हो, इसके अंदर पता नहीं कौन से स्प्रिंग्स लगे होंगे, डिजाइन हो रही है, कैसे हो रही है. I don't know, but am I enjoying this chair? Oh yes. Does this chair make my job easier? Oh 100%. chair नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे क्लास लेती खड़े खड़े, है ना. Then I remember बाहरी जीवन में और क्या. हाँ यार, अभी जो ये लैपटॉप यूज कर रही हूँ, did I make it? No, I did not. Am I using it? Yes. Is it beneficial? Oh yes. Am I being grateful for the person who did the whole coding and software design and hardware design and this and that? मुझे पता भी नहीं क्या क्या लगता है इसमें. Am I being grateful? No. Okay. Then that is an opportunity, है ना, to catch yourself. अच्छा, इस कॉल पे बैठे हैं, जिस भी रीजन की वजह से बैठे हैं, है ना. अपने किसी ने बोला इसलिए बैठे हो, जिस भी रीजन की वजह से बैठे हो, मगर क्या आपने सोचा कि यार चलो कम से कम कोई एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरा भला हो. मेरा बाहरी जीवन है ना, मैं तो नहीं हूँ, somebody outside of me wants me to benefit. क्या उसके लिए मैंने थैंक यू बोला कि वो मुझे कुछ नया ज्ञान दे रहा है या मेरे लिए भला चाह रहा है, मेरे को अपनी ब्लेसिंग दे रहा है? Maybe not, है ना. So what Albert Einstein is sharing is that मैं अपने आप को ना याद दिलाना पड़ता था दिन में 100 बार. बाहरी जीवन and then अंदरूनी जीवन. What is अंदरूनी जीवन? Things inside of you. आप अब देखो ना, आप जो खाना खा रहे हो, that is why your internal functions are working, है ना. खाना आपने उगाया नहीं. आप ये सांस ले रहे हो, पेड़ आपने उगाए नहीं. आपके अंदर खून है जो ये सारा काम पता नहीं क्या क्या काम करता है. खून आप बना रहे हो नहीं, है ना. खाना खाते रहते हो, अंदर डाइजेस्ट आप कर रहे हो नहीं, आपका स्टमक कर रहा है. आपको नहीं पता, आप कभी बीमार पड़ जाते हो, आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली कुछ दिक्कत आ जाती है, आप कोई टैबलेट नामक चीज अपनी बॉडी में डालते हो, पता नहीं उस छोटी सी दवाई में ऐसा क्या होता है कि वो अंदर जाके आपको ठीक कर देती है. बट क्या उस दवाई की रिसर्चेस आपने की? नहीं. एंजॉय कर. Albert Einstein is simply saying, I have to remind myself 100 times in a day that my internal as well as external life depends upon the efforts of other men, whether dead or alive. आज जीवित है या मृत है. और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए. What does this mean? अभी तक का तो समझ में आ गया. चलो, ग्रैटिट्यूड करना था, शुक्राना करना था, समझ में आया. There is another line that it is saying. What do you think that means? What do you think that means? कि मुझे जितना मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है, जितना मिला है और अभी मिल रहा है, मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए. And I remind myself that इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, एक बार इंग्लिश में भी इसको पढ़ते हैं. I constantly remind myself. It's a very important line. अगर आप ये समझ गए ना, तो सोचो आप अपनी लाइफ में एल्बर्ट आइंस्टाइन के रास्ते पे चलना शुरू कर दो, है ना. 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men living and dead, and that I must exert myself in order to give the same as I have received and I'm still receiving. Exert का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? What does the word exert mean? What does it want you to do when it says exert?
exert means give back, है ना? exertion के लिए आपको effort डालना पड़ता है. exertion ऐसे नहीं हो जाता सोए सोए लेटे लेटे. अरे मुझे सब पता है यार, इसमें क्या नया है, मैं नहीं करती. That is not exertion. That is anything but exertion. Exertion means to make an effort to do something. Right? जैसे कहते हैं ना, अरे तू तो बहुत ज्यादा exert कर रहा है, इतना exert मत कर अपने आप को. सुना होगा ना, don't over exert yourself. Exert is what? That you're making an effort to do something, to give back. In this case, Einstein is saying, I exert myself to give back in the same quantity जितना मुझे मिला है. अब बात ये करते हैं कि आप give back कैसे कर सकते हैं, थोड़ा logically बात करते हैं ना. How can you give back? Einstein is saying to give back. How can you give back? What are the ways for you to give back? बताओ. Giving back को क्या कहते हैं और कैसे कर सकते हो आप? You can unmute yourself. You can share. I would say acknowledge. Okay, you can acknowledge someone. Okay. Acknowledge the efforts, that have been made in the past. So, for example, we're sitting in a comfort environment with electricity, with internet. So, someone in the past, in the eras, in the years to come, has contributed, has invented, has done tireless effort to do those inventions, so that today we are able to have the amenities, the comforts, the luxuries of what we do. So one of the ways to acknowledge them, be grateful for them. Yeah. Right? How else? But thank you, Garima ma'am, for sharing. और भी बताएं, और कैसे आप give back कर सकते हो? One is by giving gratitude, by being in acknowledgement of the work that they've done. और कैसे कर सकते हैं बताएं? सोचो. आप बोले अभी तक अपनी लाइफ में you would have given. Ma'am. बताएं. Am I audible? Yes. Yeah, ma'am. Ma'am, we can give to our society by any way. Like we can work honestly at our workplace or whatever we are doing as an Indian citizen. So we can do our best to our work. So that way also we can contribute. And that way also we can... अपना काम honestly. Yes. Okay. All right. Thank you. और बताएं. I think by using that invention in a proper way, because as dynamite was invented, but it was not been used in a proper way. So if there is any invention has been done, it should be used for the purpose for which it was been invented. Okay. Very so nice. That is the way we're giving a grateful for them, gratitude for them. All right. Very nice. That whatever comes your way, you use it. ये तो बहुत अच्छी बात है. देखो अभी what we are saying is जो हमें मिल रहा है उससे बहुत अच्छे से use करें. और बताएं कैसे. तो शब्दों में अगर हिंदी का use करना होगा, to give back को हम हिंदी में सेवा कहते हैं, है ना? किसी की सेवा करना means to give back. हिंदी शब्द ये होता है. तो बताएं किसी की सेवा आप और किस ढंग से कर सकते हैं. So I'll probably share my point of view. I think आप सबके point of view से मेरा भी थोड़े नए horizons increase हुए. But how I understand is that you can exert yourself majorly in 4 categories. Like if you were to break it down, one is tan, man, dhan, and an. Right? Tan means your physical presence. Like you could physically be present where somebody needs you, and you do that. You go to your workplace where you're physically present to do your job honestly there. And now your physical presence. Somebody needs your help, you go to them, you help them out. Physical presence. You visit an NGO, you go to a Gurudwara, seva. See, the reason why I'm emphasizing upon this is because this is not just merely a concept. These all are very much action-oriented things that you can take into your day-to-day life. है ना? तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि इस पैराग्राफ को समझने के बाद मैंने ऐसा क्या इससे डिराइव किया कि आज शाम से ही I can go and I can start exerting myself to give back.
I don't have to wait for someday, one day to give back. है ना? So ये समझना बहुत जरूरी है. So मोटा मोटा ये तरीके रहते हैं. मतलब this is how I understand it. So one is your physical presence. Then second is आपका मन. मन is your heart. जिससे गरिमा मैम ने बोला आप मन से क्या कर सकते हो? Blessings दे सकते हो. है ना? किसी को तुमने बहुत अच्छा किया, मन से मैं तुम्हें दुआ दे रही हूँ, मैं तुम्हें acknowledge कर रही हूँ. मन means your heart, your mouth, you know, your conversations that you can do. आप अपना gratitude लिख रहे हो. That is what आप मन से सेवा कर रहे हो किसी. Third is dhan, easiest. If you don't have the time to write gratitude, you don't have the time to be physically present, you have a lot of money, you know, if any person you see isn't doing well, dhan se seva kar sakte ho. And then fourth is food. आपको दिख रहा है किसी के पास खाना नहीं है, उसे खाना ला के दे दिया. जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारों में लंगर चलता है, वहां पे अन्न की सेवा बहुत होती है. So the reason why I'm emphasizing upon this is because, see, आज हम लोग chapter 19 पे आ गए हैं, है ना? This book is now leveling up. अभी तक इस बुक ने आपको क्या क्या सिखाया? अपनी कहते हैं ना, अपनी झोली कैसे भरनी है, इस बुक ने आपको अभी तक सिखाया. अपने पैसे, अपना रिलेशन, अपनी हेल्थ, अपना सक्सेस, अपना करियर, अपने ड्रीम्स, अपना टू डू लिस्ट, अपना ये सब कुछ इसने आपको सिखा दिया. And now this book is saying, अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा पेट भर गया ना, now level up. Now it's time for, जब तक आप दोगे नहीं, आपके पास नहीं आएगा. And Einstein is also saying, although he's used English words for it, but if you understand, he's talking about the same thing of giving. But you know, we tend to say, अरे नहीं, मुझे और मिल जाए, अरे अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ है, मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए. Because of which हो सकता है after a while हमारे मिलने में जो हम रिसीव कर रहे होते हैं ना, उसमें थोड़ी stagnancy आ जाती है. Right? So today Einstein is breaking it down that what is the basis on which he worked. है ना? जितना मिल रहा है उसके लिए अपने आप को equal quantity में exert भी करना पड़ेगा. Exert किसी भी तरीके से करो. Like I come from a background of Sikhism. हमारे यहाँ पे एक प्रथा होती है जिसे दसवंत कहते हैं. Daswant means 1/10. Not just in Sikhism, I know a lot of religions, Christianity, Judaism, they all talk about आपको जो मिल रहा है उसका 1/10 give back. Whether it's money, whether it's, you know, आपका अगर दिन है like 7 days a week, तो उसका 1/10 कितना बना, जितने भी घंटे बने, give back. And once you really understand, even if you don't understand, it doesn't matter. This is how this universe is working, right? If you don't give, you not. So चलिए, मेरा काम था आपको अपना point of view share करना, ठीक है? मेरा और Albert Einstein का point of view share करना, and बाकी आपके ऊपर, ठीक है? And this is something you can start from today itself. You don't have to wait for someday, one day. And मैंने personally experience बता रही हूँ, जब आप उस अनुपात में देने के लिए मेहनत करना, मेहनत लगेगी. ये मत समझना कि आप वापस देना इजीली हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होएगा. मेहनत लगेगी आपको. You'll have to specifically take out time to give back. मगर हाँ, you'll have to do it. You know? So this is what Albert Einstein is saying. This is how मैं भी आपसे बात कर रही हूँ. It's opening up for me as well. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब करना है. इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है. उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन. आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता. एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी. Since somebody shared that, you know, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम honesty के साथ काम करें, अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए. It's a good thing. However, that's not सेवा. आप कोई भी चीज अपने लिए या अपने क्लोज फैमिली के लिए कर रहे हो, that is not सेवा. I'm just saying, just clarifying it. है ना? आपको लग रहा है आपने अपना पूरा टाइम निकाल के ये करके अपने, you know, anybody जिसके साथ आपकी any kind of more is related is not seva. It doesn't count as seva. Does it? That has to be selflessly done. Yeah, it needs to be selfless. मतलब selfless होना चाहिए, and where you're not expecting anything in return. So normally, no family.
fame, no family. Haji? No, I'm saying, so in this deed that you're doing, there has to be no family name involved, no fame, no expectation of name. That's how it becomes selfless, no? You do it because you do it not expecting anything in return. And since most of us will be having this conversation for the first time, the reason why I say no family is because most of us, if we do anything for family, we expect something in return hand in hand. है ना? अगर मैंने बच्चे के लिए भी कुछ किया तो मुझे उम्मीद होगी कि अब वो मुझे आके, जब मैं उससे बोलूंगी पानी का ग्लास लिया, तो वो जाके लेके आएगा, है ना? So some expectations constantly running in the back of the mind. That is not seva, है ना? तो आप अगर इसको पहली बार लेकर आ रहे हो, do it with people that you don't know at all, है ना? Gratitude, जो मन वाली सेवा है वो सबके लिए करो, that's fine, है ना? मगर तन मन धन, do it for people you don't know. उससे क्या होगा आपके ना? You're just starting in the gym, है ना? You're just building your muscle of gratitude and seva. This is my suggestion. Don't do it. And you can do it. And if someone else is doing for us, हम तो कहते हैं कि ये हमारी अपनी सेवा करी. So उस स्टेट में gratitude should be there. That I do agree कि किसी ने हमारे लिए किया तो वो सेवा है और हम कंसिडर करते हैं और हमें gratitude शो करना चाहिए. हाँ जी, gratitude तो हर जगह ही शो करना, उसके लिए तो कभी उसने मना ही नहीं किया आपको. हाँ, वही मतलब हम किसी के लिए कर रहे हैं तो वो भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए कि हमने सेवा करी. बट हमारे लिए कोई करता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि एटलीस्ट मतलब मुझे पर्सनली मुझे फील होता है कि उसने मेरी सेवा करी, उसने मेरे लिए एटलीस्ट कुछ किया. हाँ, नहीं, मैं आपको मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपके लिए कोई कुछ काम कर रहा है या आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो उसमें ग्रैटिट्यूड मत करो, मैं वो नहीं कह रही. वो बिल्कुल आपने करना ही करना है. एंड जितने दिल से करोगे उतनी ज्यादा वैसी चीजें आपकी लाइफ में और बढ़ के आएगी. वो तो आपने करना ही करना है. All I'm saying is, जो end में लाइन थी ना, you must exert yourself in the same quantity as you have been given and are still receiving. मैं सिर्फ उस चीज में कह रही हूँ जो exert करने को बोल रहा है ना. Try exerting yourself outside as well. That's the only thing. And anyway, this magic really do happen. 2 बार हो गया है मेरे साथ में, and I'm very happy to share with you. 2 बार मेरे साथ हो चुका है. Once with my daughter, मैंने उसको बताया है, उसने अपना शो किया, उसने अपनी प्रे करी कि मेरा एग्जाम अच्छा हो गया है, I'm very thankful. और उसका एग्जाम रियली बहुत अच्छा हुआ. और एक बार मेरे साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो चुका है. तो रियली मैजिक होता है. I do believe in this. थैंक यू. आपकी शेयरिंग हम एंड में जरूर लेंगे बहुत अच्छे से. ठीक है जी, थैंक यू. चलिए लेट्स स्टार्ट. आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं. आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं. हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं. लेखक विलियम ए वॉर्ड का कहना था, ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था. क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? 4 बज रहे हैं, 4:28 हो रहे हैं, है ना? सुबह से लेके अभी तक स्कैन करो, आपने पूरे दिन में कितनी बार थैंक यू बोला, अगर बोला. Just really think of it and be honest. Be very, very honest. How many seconds, if any, did you take to say thank you? हो सकता है मैजिक बुक से पहले तो पूरा दिन निकल जाता था, थैंक यू तो दिमाग में भी नहीं आता था किस चीज का थैंक यू, है ना? So today's chapter is about this. इतने सारा टाइम मिला आपको, कुछ समय तो निकाल लो, है ना? इतना सब कुछ मिल रहा है आपको, मिल ही जा रहा है. So let's go ahead. जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं. एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं.
जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना है ना। या So, आज का एक ब्लॉक चैप्टर से दूसरे ब्लॉक तक जाना। आज का चैप्टर हमें ये सिखा रहा है कि आप जब भी कोई भी कदम लें, whenever you are walking, say thank you. Left leg thank you, right leg thank you, left leg thank you, right leg thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ये असाइनमेंट आप कभी भी कर सकते हैं। इवनिंग वॉक पे जाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, अपने घर से लेके अपनी कार तक जाएं, आप किचन के अंदर ही अपने घर में ऊपर नीचे सीढ़ियां हो रहे हैं उसमें करें। Wherever you go, you can do today's assignment. मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल चलती हूँ या कहीं और पैदल जाती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों से कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, तो जादुई कदम उन भावनाओं को आप जब और इस अधिक असाइनमेंट ऊंचे को स्तर करें पर तो ले अपने जाएंगे। दिमाग में एक फाइनल डेस्टिनेशन सेट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, आप पार्क में अगर वॉक कर रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में लगा लीजिएगा कि इस पार्क के 2 चक्कर में चलो करीब 2 मिनट हो जाएंगे, या यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में करीब 2 मिनट हो जाएंगे जब मैं ये असाइनमेंट करूंगी, है ना। तो जस्ट सेट अ फाइनल डेस्टिनेशन। या मैं अपने घर से सामने मार्केट में जा रही हूँ, तो सेट दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन जहां तक आप ये एक्सरसाइज को करेंगे। एंड देन इट इज सेइंग कि जब भी आप चलें, है ना, इनिशियली आपको लग रहा हो यार इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं फील हो रहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करने में हो सकता है आपको लगे यार इनिशियली इट फील्स ऑफ, इट्स फाइन। The only key is continue doing it, continue doing it, continue doing it, continue doing it. And as you are doing it, try to feel as much as you can. ठीक है, it's fine. The only way is keep on doing it. ठीक है, आप हो सकता है इससे पहले बहुत ही एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड पे थे, है ना, काम करने के बाद एकदम थके हुए थे, आप वॉक पे जाना चाहते थे, वॉक पे जाओ, कहीं भी जाओ, इंस्टेड ऑफ being on your phone या listening to your music, do the magic footsteps practice. This is how we also do it. मैं नॉर्मली कैसे करती हूँ, जैसे मैं अपने पार्क में वॉक में जाती हूँ, तो मैं जब कदम रखती हूँ तो जैसे एक कदम थैंक यू, दूसरा कदम थैंक यू, और मेरे आंखों के सामने भी जो चीजें आ रही होती हैं मैं उनके लिए भी थैंक यू करती हूँ। जैसे जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, है ना, उसको इतने ब्यूटीफुली टाइल्स लगा रखी है या जो भी उसे कहते हैं, उसका थैंक यू। ये पेड़ों का थैंक यू, इस पेड़ पे लगे फूलों का थैंक यू, इतनी वैरायटी ऑफ पेड़ों का थैंक यू, इन बेंचेस का थैंक यू, इतने फ्रेंडली नेबर्स का थैंक यू, इतनी सुंदर रोशनी के लिए सन का थैंक यू। सो आई नॉर्मली गिव माय थैंक यू फॉर व्हाटएवर कम्स इन फ्रंट ऑफ माय आईज, है ना। वो डस्टबिन का थैंक यू, सुबह जब ये गिलहरियां और ये इतने सारे एनिमल्स आते हैं, रौनक लगाते हैं, उनका थैंक यू, इतनी सारी चिड़ियाओं का थैंक यू, इतने सारे लोग जो चिड़िया को दाने डालते हैं उनका थैंक यू, है ना। I like to do it like that. कुछ लोग वर्कआउट कर होते हैं तो इस स्वस्थ भारत का थैंक यू, मेरे को आपने इतनी बार वर्कआउट कराया उसका थैंक यू, मेरे टांगों का थैंक यू कि मैं चल पा रही हूँ, मेरे स्पोर्ट शूज का थैंक यू। This is how I like to do it. You don't have to follow me because today's chapter is saying just say thank you, thank you, thank you. आपको जो चीज करने से दिल में फीलिंग, देखो अल्टीमेट हमें क्या है, जितना फील कर पाएंगे उतना बेटर है ना। आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आप अपनी पार्किंग से लेके अपनी
क्लासरूम तक जा रहे हो और कुछ करने के बजाय बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड सी इफ यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस, है ना। असाइनमेंट करने से पहले अपने मूड को एक बार ऑब्जर्व करना और असाइनमेंट करने के बाद एंड देखना अगर कुछ आपको फर्क महसूस हो। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लें कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर है ना। कदम तो के साथ डोंट डू जादुई शब्द कीप वन धन्यवाद थैंक कहने यू, पर केंद्रित टू नहीं रह थैंक यू, जाएगा, 3 थैंक यू, ऐसे नहीं और करना। आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। ऐसे नहीं करना है, आपने सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है, ठीक है। एंड जब आप ये असाइनमेंट करें तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। दैट मीन्स आप अपना फोन घर पे छोड़ के गए हैं या बैग में पड़ा है उसे यूज नहीं कर रहे हैं, कानों में म्यूजिक नहीं लगा रखा है। जब आप ये असाइनमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ ये असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी दोस्त के साथ टहलते हुए असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, या कोई आ गया आप उनसे गप्पे मारने लग गए एंड ऐसे रोक रोक के भी असाइनमेंट नहीं करनी है ना। 2 minutes means 2 minutes, 2 minutes is a very less time. So इस असाइनमेंट को आपने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है। When you are doing this, you're just doing this. जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार है कह ना? चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? पर आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया कि था। extraordinary people don't do extraordinary work, like you know, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई one hit wonder बना दिया जिससे वो जीरो से हीरो बन गए, नहीं। It is the small, small, small things that they do in their life, that they add in their life, which makes an ordinary person extraordinary. That's all. That's really all. है ना। आप जैसे अभी तक जो हमने असाइनमेंट्स किए 19 दिनों में, किस किस को लगा बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग, ऐसी तो मैंने बात आज तक कभी जिंदगी में सुनी ही नहीं थी, ऐसी असाइनमेंट? आई डोंट थिंक सो। You know, you must have heard of this stuff before, but did you take it into your life is the question now, है ना। So this is the difference between a common man and somebody जिसको लोग उनके गुजरने के भी बाद इतना look up to करते हैं। This is how Einstein did it. आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आई है, लपकना है लपक लो, वो पर्सनल चॉइस है ना। आपके सामने अपॉर्चुनिटी को खड़ा कर दिया है। Now to grab onto it or not is always a personal phenomenon. Nobody can enforce that. Right, so this was today's chapter. Let's recap today's practice. जादुई अभ्यास क्रमांक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Chapter of Magic Footsteps, and now thank you everyone for being here and thank you for being in this practice. Now अगर आप में से किसी का कोई question है that you want to ask, अच्छा नहीं, before that let's join our hands. Join your hands, close your eyes and give your thank you. अभी तक के आपके दिन में जो जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए give your thank you.
Thank you. Thank you very much. Anji, so if any of you would like to share, or I think Balvinder ji wanted to share about her profession also, so you can unmute yourself. आप अगर वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. Please बताएं. How's it? And a few days back only I had a meeting with ma'am, and the same day you told us to practice कि कोई काम होने वाला उससे पहले ही आप उसके लिए धन्यवाद कर दीजिए. I had a meeting with ma'am, और मैंने जब आपने बोला मैंने उसी टाइम सच्चे मन से हाथ जोड़ के मैंने धन्यवाद किया कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, एंड मैम बहुत खुश हो गई. एंड सीरियसली यानी मीटिंग बहुत अच्छी हुई. And ma'am was happy, I was happy, other people, those who were there in the meeting, everyone was happy. Same practice I have told my daughter to do. She was having exam and she was not well prepared, although she was prepared, but itna acha prepared nahi thi. But I told her, you do this practice, surely you are going to see some magic in that. And she did. And when I came back home and I asked her ki beta kaisa hua exam, ki mama bahut acha exam hua, and I'm sure ki 20 में से मेरे 17 मार्क्स तो आ ही जाएंगे. मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, आईपी का एग्जाम था उसका, मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, मेरे 17 मार्क्स तो आ ही जाएंगे. तो बाद में मैंने नेक्स्ट डे आई शेयर्ड इट विद माय फ्रेंड्स आल्सो इन द स्कूल कि मैजिक रियली डू हैपन. एंड आई टोल्ड श्याम सर आल्सो कि श्याम सर मैजिक होता है बट सच्चे मन से करना है. Yes. Thank you so much for sharing. बहुत बहुत अच्छा लगा. And ये आपने बिल्कुल बोला कि सच्चे मन से करना, ये तो है. बहुत कमाल की बात होती है ना, जितने ज्यादा आप सिंपल होगे उतनी ज्यादा जल्दी this magic will come into your life. The more mind, the more all of that you put into it. भगवान भला करे. ठीक है जी. Thank you, but thank you Balvinder ji for sharing. Really amazing to hear. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, who else would like to share? How is it going for you? Hanji Pankaj ji. Ma'am, I would like to share one thing that happened today with me. It is about the magic check. The amount which I filled my magic check, I today I received the same amount from one of my friends. Wow. So this has happened for me. आप बताओगे आपने मैजिक चेक कैसे प्रैक्टिस किया, प्लीज बताओ. Ma'am, it was just only I just filled the amount and I pasted the wall where I'm just look the daily. तो वहां मैंने पेस्ट किया and believe me, today I got the same amount from one of my friend. So this is a miracle for me. Wonderful, wonderful, very very nice and congratulations. Amazing, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे. And आपका ये चेक पूरा हुआ है, तो पहली बात तो ना, जब भी कोई भी आपकी लाइफ में मैजिक आए छोटा बड़ा, उसके लिए आप जितना खुश होगे ना, मतलब सेलिब्रेट करोगे, more and more of such checks will come. But very good. अब आपको और कुछ चाहिए तो आप एक नया चेक भी बना. अमाउंट छोटा रखा था मैं, बस बड़ा होता तो मिल जाता था. हाँ जी. Definitely, this is amazing, Pankaj ji. This is amazing. तभी चैप्टर ने भी यही कहा था, है ना, जब आप पहली बार बनाओ छोटे से शुरू करो, क्योंकि जब वो सच होगा ना तो आपको अंदर से लगेगा, अरे देखो मेरे करने से this is actually working. So thank you. Only 1,000 rupees check, तो वो 1,000 ही मिला मुझे actually. Wonderful, wonderful, बहुत अच्छे. इस 1,000 रुपए के लिए इतने खुश हो, फिर अब इसके बाद नेक्स्ट जो भी चाहिए हो उसके लिए बजाना. Sure, ma'am. Thank you, wonderful. Yes, और कौन शेयर करना चाहेंगे? How's it going for you? Yes, hi Mugdha. Good evening, ma'am. I want to ask something, not from like this lesson. I wanted to ask from another one, that if we want to change some particular habit in other person, like not in myself, that I can do on my own, but in some other person. What is it that you don't like? Like if a person, like my family or my friends, if he or she is arrogant and always negative, I want to change that. Tell me one person's name and then we'll do the assignment for one person and then you can do it for everybody else also. So tell me, one person. For my brother. For your brother. And what do you not like about him? He is arrogant and he never listens to me. And yeah, okay. Good enough. Okay. So now what kind of a relationship do you want with your brother? Like, and I want that he trusts me, and he should not be always negative about people around him. He's like
he should not always be negative. Yeah, so if he's not being negative, then how should he be? He should behave nicely with other people and ensure that it's not everybody is not wrong. It is possible that he is also wrong. So I think he should realize that fact. Okay, all right. See, the reason why I'm pausing here is because हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, हमें ये बात करनी चाहिए उसमें क्या होना चाहिए. ठीक है, like he should not be arrogant. जैसे मैं अपने भाई का बताती हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी आज ताजा हुआ है अपने भाई के साथ. जैसे मैं, how can you be so rude? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हें तमीज होनी चाहिए. Right? This is what I want with my brother. है ना? But then if you look at it on the other side, maybe I want कि यार eventually I want a very understanding relationship with him. है ना, जहाँ पे वो भी मुझसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, मैं भी उससे रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ, है ना. और क्या चाहती हूँ मैं उस रिलेशनशिप में कि यार लिसनिंग भी है ना, कोई इंसान कोई कह रहा है तो वो आराम से सुन भी रहा है, having an open point of view. So पहली बात ना, it's very important to understand कि आप फाइनली चाहते क्या नहीं चाहते हो की बात नहीं कर रहे, चाहते क्या. मैं अपना बता रही हूँ, आप अपने लिए देखना, ठीक है. कि मेरे को ये भी है कि हम इकट्ठे बैठे तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, है ना, हम इकट्ठे बैठ के हंस रहे हैं, मुझे उसके साथ ये भी चाहिए, आपको हो सकते कुछ और चाहिए हो, है ना, कि मेरा भाई मेरे को ये दिलवाए वो दिलवाए, whatever it is that you want. पहले तो इस चीज के ऊपर क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि ये नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए. Now the second step is, जो हमारा एक चैप्टर आया था हील योर रिलेशनशिप्स वाला. देखो ये जो पूरी बुक है ना, इसके अंदर हम किसी भी और इंसान पे काम नहीं करते. लाइक कभी भी वो आपने देखा होगा उसने एक बार भी आपको किसी इंसान से बात तक करने को नहीं बोला है. Yes? So the only person we'll work on is ourselves. So now if I were you, how would I do this assignment? I would take a picture of my brother, you know, maybe just of him, or maybe of him and me when we were having a good time. Maybe when we went to some vacation, we went to Disneyland, we went here, when we were laughing or doing some kind of masti, you know, take that photo, just that. Then I'll sit in a आराम से शांत कमरा, जहाँ पे कोई disturb नहीं करेगा. Look at that photo for a little while, you know, and what kind of feelings am I having? कि यार कितना naughty था उस time पे भी, but कितना funny था, है ना, whatever I feel, then start writing. Initially लगेगा यार, but तब भी तो कितना खराब इंसान है. It's fine, just let that thought go. And I still sit down and think, इस पे भी मैं क्या ढूंढ सकती हूँ. चलो, I'm grateful that he has great sense of humor. And I'm grateful that he's so kind. I'm so grateful that at least he's responsible. अरे, हाँ, कि you know, I'm grateful that at least he's responsible about his own studies. Yeah, I'm grateful that he goes to the gym and takes care. मैं अपने भाई का बता रही हूँ, अपने भाई का देखा है ना, कि I'm grateful that चलो at least he loves his family. इसके उसका express करने का emotion अलग होगा, but I know that deep down he loves all of us. And then write down and write down and write down and write down and write down. अच्छा, आप बताओ, आपने अभी तक अपने भाई के बारे में उसके सामने किसी और के सामने कितनी कंप्लेंट्स करी आज तक? आज हाँ, मतलब आज तक, आज नहीं आज तक बहुत सारी. ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी कर लेते हो? एक मतलब इतनी सारी नहीं करती, तारीफें भी करती हूँ, पर एक तो कर ही लोगे, 1 per day तो होगी. या 1 per day हो गई. चलो पिछला एक साल मानते हैं, 365 कंप्लेंट्स इन लास्ट 1 year. अभी तो मैं सस्ते में आपको निपटा रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती है. 365 कंप्लेंट्स, है ना. चैप्टर 3 ने क्या बोला था? Chapter 3 ने क्या बोला था? For any relationship to become better, anything you want to change about them, into 10. Yes, for every 1 complaint, there need to be 10 blessings for the relationship to prosper. Otherwise, it will go bad to worse. Simple. 365 into 10, 3650. Start कर दो. But I'll tell you, most likely you will not have to like 365. जैसे बलविंदर जी ने क्या बोला, आप जितना दिल से फीलिंग्स ले आओगे ना, काम उसी में हो जाएगा. It's not about the numbers here at all. It's about how much it takes for you to, you know, get to that level. देखो, हमने आज तक अपनी लाइफ में ना जाने कितनी कंप्लेंट्स उस रिलेशनशिप में इकट्ठी करी हुई है ना, जिससे आज वो इस हालत पे पहुंच चुका है, जिस भी हालत में वो है, अच्छा या बुरा. तो कोई नहीं. Mukta, you do this practice. I've done it with my brother, and I know my brother
since years, unchangeable. My mother, my father, my dadi, dadu, everybody was like, I am telling you, I did this practice. But I was clear that this is, I want him to be my best friend. Clear होना चाहिए, finally क्या चाहते हो. अगर finally clear नहीं रखोगे ना, तो कुछ फायदा नहीं होएगा. है ना? तो finally क्या चाहते हो, and then write it down. I swear to God, it works like magic. जो बातें वो किसी से नहीं करता ना, वो खुद मेरे पास आके मुझे बता देता है. खुद, मैं भी नहीं बोलती. You work on yourself. वो इंसान कैसे change होगा, that's not your business. It works. So do it for the next couple of weeks. है ना? Daily करो. सुबह उठ के अगर आपको सच्ची में लगता है, start with one person. मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा. ठीक है? I just wish कि change हो जाए. अरे देखो, you need not wish. है ना? Don't want to change. देखो सिंपल सी बात है, यूनिवर्स क्या कहता है, आप जो दोगे वो आपके पास घूम के आएगा. आप किसी को चेंज करना चाहोगे, कोई आपको चेंज करना चाहेगा. Do you want to be changed? Do you like it? I don't know. Maybe what you think is right, what you think is wrong, are all perspectives. So gratitude is the easy way out. And then do this. ठीक है? अगली बार कोई भी कंप्लेंट आए तो catch yourself कि अच्छा कोई नहीं, अभी कहते हैं ना I'm under medication for the next 3 weeks. अगले 3 हफ्ते मैंने जानबूझ के उसका अच्छा ही ढूंढना है. अंदर से गुस्सा आ रहा होगा, तब भी कोई नहीं, अगले 3 हफ्ते तक कुछ नहीं करना है ना. परहेज कहते हैं ना, से परहेज करना पड़ता है. कर लेना. Good. Thank you, Mugdha. And then I'll wait for your sharing. Okay? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yes. Anybody else who's been in this journey and wants to share? How's it going for you? Hello, ma'am. Is I audible? Yes. Okay. I want to share my like one of the health issue I have. I have a sudden pain in my knee before 2 days, and pain इतना ज़्यादा था, unbearable था. But I start to do gratitude for my legs कि like उनसे मैं कहाँ घूमने गई हूँ and वो मुझे कितना help करते हैं like एक जगह से दूसरी जगह जाने में and like that. But पेन ज़्यादा था, so I go to doctor and डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी थी, उन्होंने बोला था आप नेक्स्ट डे से उसे स्टार्ट कीजिएगा. I go for homeopathy. But like gratitude really works और मुझे उस मेडिसिन की अभी तक कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने उसे ओपन तक नहीं किया है. So it's really magic for me. Thank you for everything. Good, thank you. And बहुत अच्छी बात है. I'm glad you were able to heal yourself. And कहते हैं ना, prevention is better than cure. तो इस जो आपने practice उस समय पे concentrated तरीके इसको आप रूटीन में भी लेके आ सकते हो, है ना. हर दिन कोई एक टाइम फिक्स कर लो, मॉर्निंग वॉक का या इसका, जिसमें आप अपनी हेल्थ को भर के ग्रैटिट्यूड करो. But very good. Thank you for sharing. Thank you so much. Yes. Who else would like to share? How's it going for you? Any question you have that you would like to ask? Any breakthroughs you're experiencing in your life? But I'm very happy to hear all of you share. बहुत अच्छा लगा. वरना नॉर्मली क्या होता है, टाइम ही अप हो जाता है तो इतना क्वेश्चंस आंसर्स का समय नहीं बचता है. मगर आई एम ग्लैड कि आज आप में से बहुत सारे लोग आर शेयरिंग. हेलो सत श्री अकाल बुआ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. I'm glad to see my Bua is also joined in today. How sweet. Thank you. Yes. Who else would like to share? How's it going for you? How's the journey going? किसी ने अपनी लाइफ में कोई पुराने पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपनी हेल्थ में, रिलेशंस में आपने कोई ब्रेक थ्रू आपने एक्सपीरियंस किया? किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे को WhatsApp पे सबके क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये बता दो वो बता दो, यहाँ पे भी पूछ लो आप. चलिए, so I'm presuming कि आज का चैप्टर सबको क्लियर है. ठीक है, आज का चैप्टर सुनने में बहुत आसान है, मगर आप इसे जब करेंगे ना, one of the most beautiful routines you can come into. ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो हम सीख रहे हैं, छोटी कहते हैं ना, आपकी जिंदगी को जादुई बनाने के लिए छोटे छोटे ट्विस्ट से ही सारी गेम बदल जाती है. ठीक है, सो आप जहां भी जाएं, आज अपने पार्क में जाएं, नहीं तो अगर घर पे ही रह रहे हैं तो घर पे सीढ़ियां ऊपर नीचे कर लो, एज यू लाइक. ठीक है, जस्ट कीप ऑन सेइंग थैंक यू. एंड कल हम लोग शेयरिंग्स लेंगे कि जब आपने ये जादुई कदम चले तो क्या आपको कुछ फर्क महसूस हुआ. ठीक है,
So thank you everyone for being in this journey. Thank you for being in this session, and I'm so happy आप सब लोगों की sharing सुन के, and thank you so much. See you all tomorrow.